I would like to additionally inform everyone that the two leaders have also adopted a joint statement which would be issued shortly. Both sides have also adopted the program for the development of strategic areas of India-Russia economic cooperation till 2030. And we also welcome the Russian side's decision to adopt the framework agreement to join the international Big Cat Alliance. Ladies and gentlemen, I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon, Your Excellency, Mr. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, my friend, राष्ट्रपति पुतिन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, दोबरी दिन। आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से इंडिया மற்றும் ரஷ்யா இடையிலான ஸ்ட்ராட்டஜிக் கூட்டாண்மைக்கு அவர் அடித்தளம் அமைத்தார்। संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए அந்த உறவு மேலும் வலுவடைந்து அதற்கு மேலும் பல அடித்தளம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது। फ्रेंड, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक என்னுடைய நண்பர் புதினை என்னுடைய இதயபூர்வத்திலிருந்து வரவேற்பு தெரிவிக்கிறேன்। और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। परस्पर सम्मान கடந்த சில ஆண்டுகளாக உலகத்தில் மனித சக்திகளும் மனித நேயமும் மனிதர்களும் பல சங்கடங்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர்। हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने எத்தனை சங்கடங்கள் வந்தாலும் இடர்பாடுகள் வந்தாலும் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் ஒருவரோடு ஒருவர் தோளோடு தோள் நின்று பரஸ்பர மரியாதையுடன் உறவை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு சென்று வருகிறோம்। सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। கடந்த 8 ஆண்டுகளில் आज உலகம் பல்வேறு மாற்றங்களை அடைந்திருந்தாலும் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் தொடர்ந்து வலுவடைந்து கொண்டே इंडिया வருகின்றன। रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। வர்த்தக மன்ற கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பும் எனக்கும் புதினுக்கும் கிடைத்துள்ளது। इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है।
मुझे இன்று खुशी है மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பல புதிய ஒப்பந்தங்களின் மூலம் ஏற்றுமதி உள்ளிட்ட பல துறைகளில் இரு நாடுகளுக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் திறந்துள்ளது. उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं. फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है. हम INSTC, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे. இரு நாடுகளிடையே இணைப்பு மற்றும் தொடர்பு வசதியை மேம்படுத்துவது எங்களது தலையாய முன்னுரிமையாக உள்ளது. पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे. यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे. उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है. यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा. கப்பல் ऊर्जा கட்டுமானத்திலும் सुरक्षा, உள்நாட்டில் தயாரிப்போம் என்ற முழக்கத்திற்கு ரஷ்யா தன்னுடைய ஆதரவை வழங்க உள்ளது. और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है. सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है. हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे. क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के அணுசக்தி लिए மற்றும் தூய்மையான எரிசக்தி ஆகியவற்றிலும் இரு நாடுகளும் இணைந்து பணியாற்ற இருக்கிறோம். அதே போல யூரியா உற்பத்தியிலும் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இணைந்து பணியாற்ற உள்ளன. में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा. फ्रेंड्स, भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है. दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है. इन संबंधों को और मजबूत இந்தியா करने के लिए மற்றும் हमने ரஷ்யாவுக்கு இடையில் कई மக்களுக்கு नए कदम இடையிலான அந்த உறவு சிறப்பான உறவாக में உள்ளது. रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट्स खोले गए हैं. इससे दोनों இந்தியா देशों மற்றும் के ரஷ்யாவுக்கு नागरिकों இடையிலான के बीच உறவில் எரிசக்தி பாதுகாப்பு ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கை வகிக்கிறது. और आपसी नजदीकियां बढ़ेगी. इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को काल्मिकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में ரஷ்யாவில் மேலும் 2 புதிய தூதரகங்கள் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய தூதரகங்கள் மூலம் இரு நாட்டு மக்களுக்கு இடையேயான தொடர்புகள் மற்றும் இணைப்பு வசதி மேலும் வலுப்பெறும். निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं. मैन पावर मोबिलिटी இந்தியாவிலிருந்து ரஷ்யாவிற்கு இந்தியா புத்த விகாரங்களை தரிசனத்திற்காக அனுப்பி வைத்தது. नई ताकत और नए अवसर क्रिएट करेगी. मुझे खुशी है कि इससे बढ़ावा देने के लिए आज இந்தியா வரக்கூடிய ரஷ்ய பயணிகளுக்கு, குழுவாக வரக்கூடிய பயணிகளுக்கு குரூப் சுற்றுலா விசா திட்டமும் விரைவில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது. और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे. हम दोनों देशों के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान प्रदान भी बढ़ाएंगे. फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की. பயிற்சி தொடர்பாகவும் இருவரும் ஒன்றாக இணைந்து பணியாற்ற இருக்கிறோம். शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है. हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा மற்றும் रहे உலகளாவிய விஷயங்கள் குறித்து இன்று நாங்கள் விவாதம் மேற்கொண்டோம். भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा. आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है. पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो நிலவ இந்தியா या தன்னால் क्रोकस ஏற்ற பங்கை வகிக்க தயாராக உள்ளது. किया गया कायरतापूर्ण आगाज
इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद உக்ரைனில் அமைதியை நிலைநாட்ட தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है எதிர்ப்பதில் இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவின் நிலைப்பாடு ஒன்றாகவே உள்ளது. हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की ஐக்கிய நாடுகள் சபை உள்ளிட்ட பல்வேறு உலக நாடுகளின் தளங்களிலும் இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா இடையிலான ஒத்துழைப்பு சிறப்பான முறையில் இருந்து வருகிறது. मैं एक बार फिर आपको और आपके पूरे डेलीगेशन को भारत यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद இந்த देता हूं। கூட்டும் ஒத்துழைப்பும் உலகத்தின் முன்னால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கு நமக்கு வலிமை அளிக்கும். Thank you, sir.